Greetings to everyone and welcome to Bal Bharati Vidyapeeth. Vidyapeeth is a home of true learning and ultimate pleasure. Welcome again in your class of science. We are discussing our chapter number 3 of chemistry, that is synthetic fiber and plastic. Let's start the chapter. So students, what are synthetic fiber? क्या होते हैं synthetic? As you know, synthetic means anything which is made by the human being, and fiber means the thread-like structure which is used to make the fabrics. So synthetic fiber those which are made by human beings are known as synthetic fiber. Synthetic fiber is a type of chain of small units joined together. सिंथेटिक फाइबर में बेसिकली क्या होता है, स्मॉल यूनिट्स होती हैं जिनको क्या किया जाता है, इकट्ठा जोड़ दिया जाता है और क्या बना जाता है, एक बड़ी यूनिट बनाई जाती है. सो स्मॉल यूनिट इज बेसिकली इज नथिंग एल्स, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस which combine to form a large unit which is known as polymer. So here the small units will be known as monomer. Mono means single, mer means unit, and these single units, small unit will are joined together to form a large unit which is known as polymer. Poly means many, mer means units. So synthetic fiber are nothing, these are made by the small units of chemical substances which are joined together and make a large unit which is known as poly. Next is our type of synthetic fiber. How many types of synthetic fiber are made by human? There are basically 4 types: rayon, which is also known as artificial silk, nylon, polyester and acrylic. These are the 4 synthetic fiber which are made by human being for many purposes. So let's discuss one by one. First is rayon. What is rayon? Rayon is also known as artificial silk. It was first made from a natural based material. Rayon is prepared from cellulose. Cellulose is a carbon compound. Rayon has silk like appearance and is known as artificial silk. इसको artificial silk क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसकी look है, that is just like the silk which is produced by the silkworm, which is a natural fiber. Okay, rayon is a synthetic fiber, but its appearance, its structure is just like the silk. Silk is a natural polymer, natural fiber which is obtained from silkworm. That's why this is also known as artificial silk. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make the carpets. तो इसको बनाया यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए? कारपेट्स बनाने के लिए, बेड शीट्स वगैरह बनाने के लिए. क्लियर? तो रेयन इज ए आर्टिफिशियल सिल्क. Because why it is artificial silk? Because it has property just like the natural silk. Next is our nylon. Next synthetic fiber is nylon. What is nylon? Nylon was first discovered by American scientist Wallace H. Carothers for DuPont at D. Nommers and Company America in 1935. It is the strongest synthetic fiber. So which synthetic fiber is strongest? That is nylon, which can be molded to any shape. इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है और ये क्या होता है? नेचुरल फाइबर, स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है. People believe that nylon has been named since it is products were simultaneously. It is believed that nylon was first launched in New York एंड लंडन साइमल्टेनियसली, कि इसको सबसे साथ की साथ न्यूयॉर्क और लंदन में एक साथ लॉन्च किया गया था. दैट्स वाई इट्स नेम इज़ नाइलॉन. दीज आर द मटेरियल्स विच आर मेड फ्रॉम द नाइलॉन. नेक्स्ट यूजेस ऑफ नाइलॉन. नाइलॉन फाइबर इज़ यूज्ड फॉर फाइन साड़ीज, थ्रेड, रील थ्रेड, रोप्स, फिशिंग लाइन, फिशिंग जेट, कारपेट्स, रेनकोट, स्विमवेयर, parachutes, umbrella, etc. So these all materials are made up of nylon fiber. Nylon is first formed in the America
And why it is nylon? This is first launched in New York and London simultaneously. That's why it is also known as nylon. It is the strongest synthetic fiber, and these are used to make ropes, raincoats, parachute, etc. Next our fiber is polyester. Polyester. Here poly means many, ester means units. एस्टर एक केमिकल ग्रुप होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है RCOOR. इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर. So alcohol and organic acids react together to make compound called ester, which are polymer. These are therefore called polyesters. That's why these are known as polyester. As you see in the diagram, these all materials are made up of polyester. Alcohol have the formula ROH. Acid have the formula RCOOH. In this unit we will remove water, and by removing the water molecule it will become RCOOR. So this is the general formula of the polyester. Acrylic. Next synthetic fiber is acrylic. Acrylic is known by the different trade names such as acrylene, Orlon, Jeffon. These all are the names of acrylic fiber. It is synthetic wool-like fiber with crimps, just like wool. जैसे ऊन होती है नेचुरल फाइबर है, उसी की तरह जो शेप होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, जो अपीयरेंस होती है, दैट इज़ एक्रिलिक फाइबर. तो जस्ट लाइक सिल्क, नेचुरल सिल्क की तरह जो होता है उसको बोलते हैं रेयॉन, विच इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. वुल की तरह जो फाइबर दिखता है उसको बोला जाता है एक्रिलिक. क्लियर. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज प्लास्टिक. एज द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर एंड plastic. So let's discuss with plastics. Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. All plastic don't have the same type of arrangement of units. पार्टिकल जो प्लास्टिक जो होते हैं वो ये भी क्या है, पॉलीमर्स है, यानी कि बहुत सारे यूनिट से बने होते हैं. लेकिन जो प्लास्टिक होते हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है, सेम नहीं होती. उसमें जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है. इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी क्रॉस लिंक. लीनियर जस्ट लाइक स्टेन चेन स्ट्रक्चर, क्रॉस लिंक जस्ट लाइक दिस क्रॉस लिंकिंग. बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है. देर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. Plastics are also of two types, thermosetting plastic and thermoplastic. Now let's discuss the thermoplastic. Which plastic is known as thermoplastic? Some plastics articles can bend easily while some break when forced to bend. सभी ने देखा होगा कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं तो फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो अपनी शेप चेंज नहीं करते, अगर उन पर फोर्स किया जाए तो वो ब्रेक हो जाते हैं. When we add hot water to a plastic bottle, it get deformed. सभी को पता है अगर पानी प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डाल देता है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, that is become deformed. Such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. Thermo means heat. प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक जिनको हीट करने पे, गर्म करने पे उसकी शेप को चेंज किया जा सके, that plastic are known as thermoplastic. Clear? Thermosetting plastic. Some plastics which when molded once cannot be softened by heating, these are called thermosetting plastic. कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको एक बार जो शेप हमने दे दी, दोबारा उस शेप को हम रिफॉर्म नहीं कर सकते, दोबारा उनकी सेटिंग नहीं कर सकते. That's why these are known as thermosetting plastic. Clear? Next is plastic is non-reactive. As we see, we can contain anything in the plastic container. That will be airtight containers are also made of plastic. So plastic is non-reactive. Why? With a metal like iron get rusted. कुछ जो metals होते हैं, हमने पढ़ा था मेटल वाला चैप्टर, लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में. मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, वो एयर से, वाटर से, एसिड से, बेस से रिएक्ट कर जाते हैं. तो जैसे आयरन है, आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे भी क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है. सिल्वर है, उसके ऊपर भी रस्टिंग हो जाती है. बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और एयर. प्लास्टिक के मग हैं, बकेट्स हैं, अगर ये रिएक्ट होते तो हम इनकी मग और बकेट नहीं बना सकते थे. ठीक है. दे आर नॉट कॉल्ड ईजिली, इन पे जल्दी से जंग नहीं लगता. दैट्स वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल. इसीलिए लेबोरेटरी के अंदर भी, लैब्स के अंदर भी देखते होंगे आप, केमिकल्स भी किस में स्टोर किए जाते हैं, प्लास्टिक की बोतल में स्टोर किए जाते हैं, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक. Plastic is light, strong and durable.
प्लास्टिक जो हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, ड्यूरेबल, मतलब लंबे समय तक ये चल सकता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट दैट वर यूज इन द पास्ट। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ बकेट और मग यू आर यूजिंग टुडे। अपने घर में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना सभी कि जो पहले जो बकेट्स और मग्स वगैरह होते थे वो किस मटेरियल के बने होते थे, और आज जो आप यूज़ कर रहे हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं। आज हम जो यूज़ कर रहे हैं दैट आर प्लास्टिक। वट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर। अभी हम टब्स वगैरह हैं, बकेट वगैरह हैं, सब कुछ प्लास्टिक के हैं। पहले ये नहीं होते थे बेटा, पहले मेटल्स के यूज़ करते थे। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्ड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप एंड साइज, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। प्लास्टिक आर जनरली चीपर दैन मेटल्स। दूसरी एडवांटेज क्या है प्लास्टिक की, एक तो ये नॉन रिएक्टिव है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, और क्या एडवांटेज है कि ये जो चीप होता है, सस्ता होता है मेटल्स की बजाय। दे आर वाइडली यूज इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स एज सीन इन द डायग्राम। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। पुअर कंडक्टर मीन्स heat and electricity cannot pass through the plastic. Plastic are poor conductor of heat and electricity. That's why electrical wires have plastic covering. Handles of screwdrivers are made of plastics. As mentioned above, handles of frying pans are also made of plastic. आप सभी ने देखा होगा ये सभी मटेरियल सभी के घर में अवेलेबल होते हैं। ये जो हैंडल्स हैं, ये जो स्क्रू वायर हैं, स्क्रू ड्राइवर्स हैं, इन सभी के हैंडल जो किसके बने होते हैं, वायर्स पे भी किसकी कवरिंग होती है, प्लास्टिक की, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो ब्लैक कलर की कवरिंग होती है वायर पे, दैट इज़ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ पॉलीमर। तो ये इनके क्यों बने होते हैं, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। नेक्स्ट द सीरियस टॉपिक इज़ वट इज, हमने अभी यहाँ पे प्लास्टिक की इतनी सारी एडवांटेज पढ़ी, लेकिन जिस चीज़ के कोई फ़ायदे होते हैं उसके साथ के साथ क्या होते हैं, नुकसान भी होते हैं। नाउ प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है, इट इज़ हार्मफुल टू एनवायरनमेंट और नॉट। When we go to market, we get usually things were wrapped in plastic or packed in the polythene bags. That is the one reason why plastic waste keep getting accumulated in our homes. हम मार्केट जाते हैं, बहुत सारे मोस्टली सारे आइटम्स हमें प्लास्टिक के बैग्स में लेने होते हैं। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे इन गार्बेज, जिस वजह से प्लास्टिक जो है गार्बेज के अंदर क्या हो जाता है, इकट्ठा होता जा रहा है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। यहाँ पे सारे हमने प्लास्टिक के एडवांटेज पढ़े, बट द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक इज़ दैट डिस्पोजल प्रॉब्लम। Material which get decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable. जैसे पेपर है, ये बायोडिग्रेडेबल है, इनको बैक्टीरिया जो है नेचर के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इनको क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक को, पॉलीथीन को हमारे एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। दैट्स वाई द मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक यूज इज़ इट्स डिस्पोजल. So a material which is not easily decomposed by natural process is termed as non-biodegradable. That's why plastic is non-biodegradable because it cannot be decomposed by the bacteria present in our environment. So please save the environment. Since plastic takes several years to decompose, so that's why it is not environment friendly. इट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्या करता है ये, पर्यावरण प्रदूषण क्रिएट करता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो, इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजिली। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम इन टू द एटमोसफियर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। अगर इसको बर्न भी करते हैं तो ये क्या करता है, बहुत सारी हार्मफुल पॉइजनस गैसेज रिलीज़ करता है हमारे एटमोसफियर में, जो एयर में जाके मिक्स हो जाती हैं और एयर पोल्यूट हो जाती है। सो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड? अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल। मेक यूज़ ऑफ बैग मेड अप ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जितना हो सके प्लास्टिक का जो यूज़ है वो अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में जाते टाइम खुद के अपने कॉटन या जूट के बने बैग्स यूज़ करने चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। घर में जो आपके डस्टबिन हैं वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों जो मटेरियल हैं, दोनों जो गार्बेज है वो सेपरेट कलेक्ट करना चाहिए, उनको डिस्पोज ऑफ भी सेपरेट करना चाहिए। Practice this in your home. It is better to recycle the plastic waste
मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, क्योंकि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उसको रिसाइकिल किया जा सकता है. However, during recycling, certain coloring agents are added. This limit reuse, especially is not used for good for food. So, takes a promise, don't throw plastic bag in the water bodies or on the road. कभी भी प्लास्टिक के जो थैले हैं, पॉलीथीन जो हैं, उनको पानी जैसे रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, इनमें कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, रोड पे कभी भी नहीं फेंकना चाहिए. टेक ए कॉटन कैरी बैग और ए जूटन बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग. शॉपिंग के लिए जाते टाइम कॉटन का या जूट का बैग अपने साथ लेके जाएं. ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एज फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वन. So this is all about your chapter. I hope you understand the topic and like the video, subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.